हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। आपके चहेते ज्ञानवर्धक एंड शोल ऑफ नॉलेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू नो a new topic of media, journalism, mass communication or our daily life, and that is principles of reporting. Friends, we have been knew that what are the types of reporting, what are the beats of reporting, what are the objectives of reporting, what is the reporter, what are the main characteristics of a reporter. Now today in class we will know the principles of reporting. Friends, first of all we should know the word reporting. Friends, the reporting is refers to searching and, friends, again I say searching and presenting information for newspapers and other medias. That media may be electronic media, new media, social media, etc. Friends, reporters collect the news information from different places, different beats, different fields, different their interests, and reporting is a hard working work that needs a lot of patience, and it is the main function of the journalism. And the profession of journalistic is new reporting, that is reporting. Friends, in easy words, reporting is to collect the news and information and present through the print media or any other media to the public, to the reader, to the visitors, to the listeners, etc. Friends, now thing is the reporting's principles. In other hand, what is the good reporting, or what are the principles for a healthy reporting, or wealthy reporting, or knowledgeable reporting, or informative reporting. Friends, these are many types of principles, but the main principles are 7, and we will know these in today's classroom. And first is accuracy. Friends, accuracy. Reporters should know that the information or news collected by them should be accurate and correct. There should be not biased comment and biased information source or biased views or biased thoughts. Friends, accuracy, everything should be correct. सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम. Accurate होना चाहिए. It should be accurate. Friends, if the information will be accurate, this will be new. Newest things, newest information will be reporting. The thing of reporting. The second is fairness and impartially. Friends, many times we add our thoughts in other informations, but reporters should not be add
their views in the information or news. Friends, the reporter should have the view of public, the view of reader, so he can the fair and accurate reporting. Friends, fair, fair, it means the source is fair, news is fair, information is fair, all things is fair in news or reporting. Friends, reporter should be a sant, monk. He has not any type of biased thoughts. He should be not biased. He should be only with the public. Now, the third is accountability and sensitivity. Friends, a reporter should be know that every news, every information has sensitivity point also. Friends, there are many views of a news. Friends, a reporter should go through the all aspects and effects of news and information gathered by them. Friends, he should know the accountability of the news. If the news or information has not any type of accountability, and if there is sensitivity or sensitivity issues, then the reporter should not gather it or send it to media houses. Friends, if he will do that, there will be a big bang problems with the media house because of their sensitive reporting. Friends, fourth is privacy and sensitivity. Friends, privacy is the right of every person in a Loktantra, independent country, right? So we have not looked into the personal life of any person. This should be known by the reporter. Reporter should be know that his limit is end where the personal view come in his way. So he should not bias or nothing do in the personal life of others. Next is attribution. Friends, a reporter should be attribute the name of information source, so he can free from the bias or accuracy of news. Next is public interest. Friends, many times the reporters manipulate the news or information because of making it in entertainment way, but it is wrong, totally wrong, because the name of media house will be ruined, will be biased, and the media will be lost his goodwill, his accountability in society. So a reporter should not be mix its views or its own interests in news. He should know that if he is
a reader, then will he like this or not? And then he should send the news or information to his or her media house. Next is independence. Friends, every reporter should be independent. If he will be independent, his pen will be independent. He will be work with free mind and free hands. He should not go with bad news. If he will go to bad news, he will earn money, but he will lost his trust in society, his name in society, his fame in society, his accountability in society. Friends, and if he neglect the bad news, then he will be a person who will be synonym of a good reporter. Friends, these were the main principles of reporting. Now we will know these same in the Hindi also. दोस्तों, आज हमने इंग्लिश में रिपोर्टिंग और उसके प्रिंसिपल्स को जाना, लेकिन जैसा कि परम क्लासेज कहता है, उसका धर्म है, उसका रिलीजन है, उसकी मान्यता है कि हिंदी भाषी छात्रों को भी वही ज्ञान और नॉलेज मिलना चाहिए जो कि इंग्लिश भाषा वालों को मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है रिपोर्टिंग और उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है। दोस्तों, रिपोर्टिंग वह कार्य है जो कि रिपोर्टर द्वारा अपने फील्ड, अपने क्षेत्र, अपनी बीट में रहकर सूचनाएं और समाचार, एक अनुसंधान, खोज, उसके बाद गैदर करके, इकट्ठा करके और अपने मीडिया संगठन को भेजा जाता है। और निश्चित रूप से यह एक कठिन और परिश्रम भरा कार्य है। दोस्तों, परिश्रम इतना ज्यादा है कि वो 24 घंटे रिपोर्टर सोचता रहता है कि मैं कैसे अपने जो मीडिया संगठन है उसको बेहतरीन सेवाएं कैसे दे सकूं, अपने अकाउंटेबिलिटी के रूप में, अपने निष्पक्षता के रूप में। सारा वो सोचता रहता है कि कैसे मैं अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करूं। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया आपको छोटा सा घटनाक्रम बताता हूं कि एक बहुत छोटा रिपोर्टर थे जिन्हें कि अब न्यूज के हिसाब से पैसा मिलता था, लेकिन एक बार ऐसा वाकया हुआ कि वो रात को सो रहे थे और उनके देश के प्रधानमंत्री, अब देखिएगा कि रिपोर्टर क्या है और रिपोर्टिंग के सिद्धांत क्या है। दोस्तों, उस टाइम की बात है जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इतना पता कर लें कि भैया ईंधन कितना है, कितनी दूर तक हमारा विमान उड़ेगा। दोस्तों, हुआ क्या कि विमान उनके शहर के ऊपर से गुजरा और अचानक पायलट को यह लगता है कि ईंधन बहुत कम है। तो उन्होंने, जो कि एक रिपोर्टर जो जिन्हें कि न्यूज के हिसाब से पैसा मिलता था, फ्रीलांसर को, उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया और बोला, सुनो भाई, एक्चुअल में क्या है कि प्रधानमंत्री जी अभी मेरे साथ हैं और आपके शहर के ऊपर से निकल रहे हैं और हमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि इसमें ईंधन नहीं है और रात को टाइम रहा होगा 2 बजे का, रात को 2 बजे, सुनिएगा आप ढंग से। तो उसने पहले तो सुना, फिर बोला हाँ आ जाइए, मिल जाएगा आपको, लेकिन आप जैसे पहुंचे मेरे को एक बार कॉल कर दीजिएगा कि हम पहुंचने वाले हैं 10 मिनट पहले। बोला ठीक है, उन्होंने मैसेज भेज दिया, बोला हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, उस रिपोर्टर ने क्या किया, यदि आप सुनेंगे ना तो सुनकर दंग रह जाएंगे कि असली रिपोर्टर तो यही है दोस्तों, जो कि अपने संगठन की कैसे सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन रिपोर्टर ने, हालांकि एक वक्त का मारा हुआ था, तो उसने क्या किया, हालांकि उसे बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन
दोस्तों एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रस्ट, एक ऑनेस्टी क्या पे करती है वो देखिएगा। उन रिपोर्टर ने क्या किया, अपने सभी जानकारों को उठाया, फूलमाला वालों को उठाया, होटल खुलवाए और नाश्ता, खाना, मालाएं अपने घर वालों को लेकर पहुंच गए एयरपोर्ट पर। लैंडिंग हुई, 10 गैलन की जगह 20 गैलन ईंधन लेके पहुंच गए और बातचीत की, उनको मालाएं पहनाई, उनका भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का, उसके देश के प्रधानमंत्री का। उनके साथ खाना खाया, नाश्ता किया और ईंधन था वो भर दिया उसमें। पायलट ने कहा पैसा, बोला मरवाओगे क्या, प्रधानमंत्री जी हैं और जो देश के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं उनसे मैं पैसा मांगूंगा, उसके लिए मैं पैसा लूंगा, उनकी सेवा में अधिकार है मुझे। और दोस्तों दूसरे दिन जिस न्यूज़पेपर को वो न्यूज भेजते थे उसकी हेडिंग क्या थी पता है क्या, प्रधानमंत्री आज हमारे शहर में, बस ये हेडिंग थी पहले पेज। क्योंकि किसी दूसरे न्यूज़पेपर को पता ही नहीं था, राइट। और उन्हें क्या बनाया गया पता है, उन्हें इसका क्या तोहफा मिला, उस न्यूज़पेपर का एडिटर बना दिया गया दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों अनबाइस्ड रिपोर्टिंग करने का फल मिलता है। यह है सिद्धांत जो एक रिपोर्टिंग का सत्य सिद्धांत है। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, यही है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि मेन कौन कौन से हैं इसके सिद्धांत हिंदी में भी। एक्यूरेसी, सत्यता दोस्तों, सत्य होनी चाहिए हर बात। वही है कि प्राण जाए वचन, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दोस्तों एक बार सत्य कहते हैं, यदि गर्दन कटती है ना कट जाए, लेकिन सत्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। रिपोर्ट सत्य बात कहेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, उसकी प्रतिष्ठा बनेगी और उसे उसका तोहफा बहुत बड़ा मिलेगा दोस्तों। यह और जनता जो जानना चाहती है, एक्यूरेसी जानना चाहती है दोस्तों। मसाले वाली खबर तो उसे मार्केट में मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है, लेकिन वो क्या चाहता है कि मुझे एक्यूरेसी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है आपका फेयरनेस एंड इंपार्शियलिटी, निष्पक्ष चाहिए और साफ सुथरी न्यूज चाहिए उनको। इसलिए उसे चाहिए एक रिपोर्टर को कि उसे अपना व्यू, अपने विचार या अपनी सोच उसे थोपनी नहीं है, उसके अनबाइस्ड निष्पक्ष समाचार देना है। क्योंकि एक पाठक या एक दर्शक क्या चाहता है कि वह सत्य का दर्शन कर सके, सत्य उस तक पहुंच सके और वो सत्य को जानकर उसके प्रति अपना व्यू बना सके। अगला है अकाउंटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। दोस्तों किसी भी मीडिया का या रिपोर्टर की अकाउंटेबिलिटी कब बनेगी, यदि वह सेंसिटिव विषय को नहीं छापेगा। दोस्तों कई बार ऐसी न्यूज आ जाती है जो कि विरोधाभासी होती है, सेंसिटिव होती है, सेंसेशनल होती है, संवेदनशीलता होती है उसमें। तो क्या करेगा, उसे कुछ इस तरह से मोल्ड करेगा कि उसे वो लगेगा नहीं और न्यूज भी आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा काम उसे करना है। नेक्स्ट है प्राइवेसी एंड सेंसिटिविटी। दोस्तों होता क्या है, हर किसी की प्राइवेसी होती है। देखिए प्राइवेसी मतलब व्यक्तिगत कई मामले होते हैं, तो एक रिपोर्टर को चाहिए किसी व्यक्तिगत लाइफ में, जिंदगी में ना जाके। वो ये सोचता है ना कि मैं कुछ ऐसा करूं और मेरा नाम हो जाए रिपोर्टिंग के क्षेत्र में, तो किसी की व्यक्तिगत लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन को छेड़छाड़ ना करें। उसके बिना यदि वो हाँ उसे अधिकार है, यदि कहीं कुछ कांड हुआ है, उसे उसकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है और उसमें वो विक्टिम है कोई व्यक्ति, तो उसे अधिकार है कि उसकी खोज कर बाहर निकाल सके उस न्यूज को, तो ही उसे जाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों यह उसकी और उसके संगठन के लिए बहुत खतरा साबित कर सकती है। अगला है आपका एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मींस क्या होता है, संदर्भ देना। तो उसे क्या करना चाहिए, जो स्रोत है ना किसका, सूचना का, उसे क्या करना है, उसका वहां संदर्भ देना चाहिए। उसे भूलना नहीं चाहिए कि ये कहां से आई है न्यूज। ऐसा करने से कई बार एक रिपोर्टर बच सकता है, कई बार गलती हो जाती है, स्रोत का नाम देते हैं तो कुछ हद तक वो बच सकता है, लेकिन अपने दायित्व से मुख नहीं मोड़ सकता। लेकिन उसे संदर्भ को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि हमने यहां से मैटर लिया है। उसके बाद आता है पब्लिक इंटरेस्ट। दोस्तों पब्लिक क्या चाहती है, एक दोस्तों पता है रीडर क्या होता है, रीडर एक समाचार पत्र के लिए वह स्रोत है जो कि उसे हर रोज
कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, स्रोत वह है नहीं, एक दर्शक वह है या पाठक वह है जो हर रोज यह इंतजार करता है कि कब न्यूज़पेपर आए, कब मैं उसे पढ़ूं, क्योंकि वह अमुक समाचार पत्र मेरे इंटरेस्ट की न्यूज लेकर आता है, वो मुझे लाकर देता है कि मैं क्या चाहता हूं वो मुझे पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, यह चीज है ना, जिस दिन खत्म हो गई उस दिन न्यूज़पेपर का जो संगठन है, जो महल है, वो भर भरा कर गिर जाएगा। दोस्तों, भूकंप की जरूरत नहीं है उसको एक विश्वास की जरूरत है। किसकी? पाठकों की। और कब जमेगा ये विश्वास, कब मिलेगा उसे? जबकि उसकी मनमाफिक न्यूज, उसी के रुचिकर विषय की न्यूज उसे मिलती रहेगी। दोस्तों, ये तभी संभव है जब रिपोर्टर निष्पक्ष हो, अनबाइस्ड हो, सत्य का प्रेरक हो और सत्य का ही क्या हो? साधक हो, तभी हो सकता है। अगला है दोस्तों इंडिपेंडेंस। दोस्तों, एक जो रिपोर्टर है उसको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। उसकी कलम, उसके विचार, उसकी शोर फ्री होनी चाहिए, फ्रीडम, किसी आगे बिकाऊ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि एक एडिटर की कीमत पांव पहुंचने वाले पायदान से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि वह अपनी बात पर अडिग है, उसकी कलम सत्य के लिए जीवित है ना दोस्तों, तो इस बात को जुटलाया भी जा सकता है। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। दोस्तों, यही चीज एक रिपोर्टर पर लागू होती है। यदि उसने ऐसा काम किया, इंडिपेंडेंटली काम किया, तो उसे झुकाने की ताकत किसी में नहीं है दोस्तों। और यदि जिस दिन रिपोर्टर झुक गया ना दोस्तों, तो उस दिन किसी लोकतंत्र की बोली लगाने के लिए समय शेष नहीं बचेगा दोस्तों, अवशेष रह जाएगा उस लोकतंत्र का। क्योंकि मीडिया फोर्थ स्तंभ है, लेकिन काम करता है पहले स्तंभ का, जो कि आज भी जीवित रख रखे हैं लोगों की फ्रीडम को, आजादी को, उनके विचारों की आजादी को, अभिव्यक्ति की आजादी को। और ये किसकी वजह से है? रिपोर्टर की वजह से, रिपोर्टिंग की वजह से, या सत्य रिपोर्टिंग की वजह से, सत्यनिष्ठ रिपोर्टर की वजह से। लेकिन दोस्तों, ये तभी होगा जब हम पेड न्यूज को प्रश्रय नहीं देंगे या उसके हाथों नहीं बिकेंगे। दोस्तों, क्या होता है, एक रिपोर्टर चंद सिक्कों की खनक के आगे खुद का जमीर बेच देते हैं। दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद ने कहा भी है कि पेड न्यूज को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कई मीडिया संगठन है, वो रिपोर्टरों का शोषण करते हैं, 5,000 रुपये महीने का तनख्वाह देते हैं। वो कैसे तो अपने बूढ़े बाप की दवाई ला पाएगा, कैसे अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर पाएगा, कैसे अपनी मां की खनकती चूड़ियों की आशाओं को पूरी कर पाएगा। दोस्तों, तो उसे पेड न्यूज का सहारा लेना पड़ता है, उसे भी भ्रष्टाचार। लेकिन दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत ही बढ़िया चीज कही है कि दोस्तों, यदि आपको पैसा कमाना है ना, तो इस सेवा क्षेत्र को छोड़ दीजिए, क्योंकि पैसा क्षेत्र है ही नहीं है। यह खाली समाज सेवा, राष्ट्र की सेवा का क्षेत्र है। यदि आपको पैसा कमाना है ना, तो दूसरे क्षेत्र में जाइए, वो आपको पैसा देगा। इसलिए कहा भी गया दोस्तों कि पत्रकारिता क्या है? एक सेवा का क्षेत्र है। देखिए, मैं बात बताऊं आपको, आजादी के वक्त की बात है, जब एक मेन ध्येय था देश को आजाद करवाने का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसमें लग गए थे, सब भाई थे कि हमें देश को आजाद करवाना है। तो एक अकबर इलाहाबादी, लोग अंग्रेजों को मार रहे थे, तो अकबर इलाहाबादी हुए, उन्होंने कहा, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? तो बोला कैसे करें? बोला मेरी पंक्तियों में ध्यान दीजिए आप। क्या? खींचो ना कमान न तलवार निकालो, खींचो ना कमान न तलवार निकालो, जब तोप की जरूरत हो तो अखबार निकालो। दोस्तों, कमान, गोली और तलवार, इनसे कितने लोग मरेंगे? 1, 2, 5, 10। लेकिन यदि अखबार निकाला और उससे जनता जागरूक हो गई, तो तख्ता पलट करने में अंग्रेजों के 1 सेकंड नहीं लगे। अगर वही बात दोस्तों, इस आजादी के महापर्व में, आजादी के महायज्ञ में जितना योगदान पत्रकारिता ने दिया ना दोस्तों, उतना किसी ने नहीं दिया। हाँ, मानते हैं कई देशभक्त थे, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से योगदान दिया। उन्होंने ये देखा कि हम पत्रकार के रूप में हम कुछ हमारे विचार छापेंगे तो लोग प्रेरित होंगे। और वही बात दोस्तों, लोग उस आहुति में
कूद पड़े और यज्ञ में अपनी आहुतियां देते चले गए। तो दोस्तों यहां तक कि न्यूज़पेपर पे एक रेट लिखी जाने लगी, और जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा, रेट थी यदि आपको 1 प्रति चाहिए, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए और कुछ नहीं, उसमें लिखा गया था यदि आपको 1 प्रति चाहिए अखबार की तो अंग्रेज का एक ताजा कटा हुआ सिर ले जाइए और एक कॉपी ले जाइए। दोस्तों ये इसका मतलब ये ना था कि अंग्रेज की मुंडी काट के लाओ दिखाओ और अपना कॉपी ले जाओ अखबार की। तो क्या था, अंग्रेजों के प्रति रोष पैदा करना, विरोध पैदा करना, उनके अंदर आग पैदा करना कि अंग्रेजों को कैसे बाहर भगाया जाए। ये था मंतव्य उस टाइम की पत्रकारिता का, और पत्रकारिता उस टाइम समाज सेवा थी दोस्तों पूरी तरह से। लेकिन आज पत्रकारिता में कुछ उद्योग की चीजें आ गई। क्यों आ गई है? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सुंदर कलेवर में आए न्यूज़पेपर, कलरफुल आए। तो दोस्तों आज का जो युग है टेक्नोलॉजिकल युग है, टेक्निकल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों उसमें खर्चा तो होगा, इसलिए क्या है न्यूज़पेपर की रेट भी बढ़ी और एडवर्टाइजमेंट भी बढ़े। तो दोस्तों ये था हमारे आज का टॉपिक, जिसको हमने आपने सिद्धता से सुना होगा, हिंदी और इंग्लिश में भी सुना होगा, और ये आपके हर एग्जाम के लिए जरूरी है दोस्तों, और आपके डेली लाइफ के लिए भी जरूरी है दोस्तों। और जिसमें कि सीयूटी एग्जाम है, एनटीए नेट है आपका, इसके अलावा और भी कई एग्जाम है जिसमें कि आपको सारे एग्जाम एनटीए नेट, सीयूटी एंड पीआरओ, बीजीएमसी, एमजीएमसी, एंट्रेंस एग्जाम, मीडिया, और यदि आप किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, क्या क्या रिपोर्टिंग करनी चाहिए दोस्तों, प्रिंसिपल सबके सेम है। कान कहीं से पकड़ो चीज वही आएगी। दोस्तों हमें करना क्या है, सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम का उपासक होना है दोस्तों। तभी हम एक सत्य निष्ठ और निष्पक्ष रिपोर्टर बनकर हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे आज का वीडियो, आज की क्लास। तो दोस्तों बस एक चीज चाहेगा प्रेम क्लासेज आपसे कि आप अपने चहेते इस चैनल को प्यार स्नेह ऐसे देते रहिएगा और उत्साहवर्धन करते रहिएगा। कमेंट में लिखकर, कमेंट में क्या लिखेंगे कि आपको कैसा लगा, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या नहीं जानना चाहते, सारा। और आपको करना क्या होगा, बेल आइकन दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लगातार देखते रहिएगा। ये प्रॉमिस है हमारा कि आपका हर वीडियो हमारे चैनल का आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों कल हम मिलेंगे इसी वक्त और इसी चैनल पर, तब तक के लिए